Friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to the last edition of the Shakti Suno for the year 2021. Next edition we are going to have in the January 2022. इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले, we have a tradition, and the tradition is that if some new member wants to introduce himself or herself, we most welcome him. We have recently joined member Mr. Om Prakash Sharma with us. So, Mr. Om Prakash Sharma, can you, sir, introduce yourself? Yes, sir. Thank you very much, sir. Good evening to all. My name is Om Prakash Sharma, short form OP Sharma. I was born in 2nd May 1950 in Haryana, Ambala, Kent. I have done my BTech honors from IIT Bhiwani in first class, first position, and MTech from Fiber Science and Technology from IIT Delhi, first class, first. I started my career from JK Synthetics, Kota, from 1974 to 76. Then I joined Sri Synthetics Ujjain from 1976 to 1983. Then I joined Loya Machines Kanpur from 1985 to 1983 to 85. Then Jindal Polyester from 1985 to 1993, Bulandshahr. Then I joined Reliance 1993 and worked up to 2007. I worked at Reliance plant at Patalanga. I was a technical manager there. I have got a family of 4 persons, myself, my wife, and 2 children. Now my children, they are all settled. My daughter is settled in USA, Irvine, State, California. And we are staying with my son, who is working with Google Cloud in marketing department. He's working in Bombay office, BKC office, working from home. And then after retiring from Reliance, I worked in other private factories. I worked with the well-known polyester Vapi for 2 years, 2007 to 2009 in a private factory. I was present there. Then worked with Sanathan Textiles, Silvassa for 2009 to 2014. I was again head of the unit there. Then worked with Nakota Polyester, Surat, from 2014 to 2016. And the factory got closed because of some problems, because of money problems. And they had goofed up everything. So the factory got closed. So I had to leave my job. Then I thought that it is all done till now. So I left the job and started joining my retired life. I stay in CBD Belapur, Sector 15. And in my spare time, I spend my time on a mind, body, and soul healing techniques, which I'm very much practicing on a daily basis. I find it very useful. So this is all very brief about me. And if any questions on diet from anybody, please you can ask me. Thank you, OP Sharma sir, for introducing yourself. We welcome you once again. Thank you, sir. Look forward to your participation. अगर बाद में आप अपनी experience कहीं पे share करना चाहते हैं, कोई topic पे बात करना चाहते हैं, mind, soul and body, आप जो healing technique कर रहे हैं उसके ऊपर अगर बात करना चाहते हैं, we'll be too happy to have your session. Thank you very much, and we once again welcome you. And let me also inform you that Mr. Sharma, he was introduced by Dr. Gopal Pathur. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Gopal Pathur, sir, आपको भी thanks. Friends, as I told you that this is the last edition of the Shakti Suno program for the year 2021. 2021 has been a eventful year for all of us. We had the Delta variant of the corona. Now by the end of the year, we are seeing now the Omicron variant of the corona. So there is not many issues which are happening. On the economy front also, we are seeing that the economy did show a sign of bounce back, let me put it that way, bounce back. But once again, because of this Omicron, the whole world economy is once again appear to going into a little bit of shell. Particularly in the European part of the country, the economy is likely to go into a little bit of shell. We have to wait and see what happens to the 2 largest countries of the world, and that is US and China.
let's hope as many people are predicting that may be an end game for this particular virus, but we are not very sure. Let's all hope that this is going to be the end game for this particular virus, and 2022 onwards, maybe we have a much more peaceful, fruitful and happy life. Let's hope, we can only hope like that. आज 26 दिनों के प्रोग्राम शुरुआत करने के लिए हमारे साथ आ रहे हमारे बड़े वरिष्ठ प्यारे मित्र भारत भूषण शारदा जी। तो मैं भारत भूषण शारदा जी अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात सुनाएं। सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही। धन्यवाद सर। तो साथियों, आप सभी का आज की काव्य संध्या में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। इसके साथ ही मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं आदरणीय डॉक्टर सेन गुप्ता जी का, जिन्होंने आज मुझे ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि मैं अपने सामने कुछ कह सकूं। साथियों, आप जानते हैं पिछले महीने नवंबर मास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आया था और वो था चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाते हैं, उनका जन्मदिन के रूप में। आज एक छोटी सी रचना के माध्यम से मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्मरण कर रहा हूं। आशा है ये छोटा सा गीत आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। करती है फरियाद ये धरती, करती है फरियाद ये धरती, कई हजारों साल, तब जाकर होता है पैदा एक जवाहरलाल, तब जाकर होता है पैदा एक जवाहरलाल। गंगा जमुना के संगम पर, गंगा जमुना के संगम पर चमकी एक मशाल, बहुत नहीं उस दिन को हुए सिर्फ 74 साल। धन्य है वो माँ जिसकी गोद में खेला ऐसा लाल, जिसकी अमृत वाणी सुनकर दुनिया हुई निहाल। पिता हो मोती पुत्र जवाहर, ऐसी कोई मिसाल दे न सकेगा दुनिया को इतिहास करोड़ों साल, इतिहास करोड़ों साल। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर होता पैदा एक जवाहरलाल। बचपन में तो राजकुमारों जैसे उनके थे आराम, लेकिन आई जवानी लेकर एक नया सुंदर पैगाम। कहा जवानी ने उठ बदले भारत की तस्वीर, कहा जवानी ने उठ बदले भारत की तकदीर। कब तक पड़ी रहेगी माँ के पाँव में जंजीर, कब तक पड़ी रहेगी माँ के पाँव में जंजीर। सुनकर गांधी जी के मुख से आजादी का नारा, कूद पड़ा मैदान में भारत माँ का राज दुलारा। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर होता है पैदा एक जवाहरलाल। महलों से निकला शहजादा बनकर एक सिपाही, ढूंढने आजादी की मंजिल आजादी का राही। जुल्म को एक तपस्या समझा, जेल को तीरथ जाना, हर आफत में सबसे पहले अपना सीना ताना। तब तक देश का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा, जब तक आजादी की नैया को न मिला किनारा, जब तक आजादी की नैया को न मिला किनारा।
करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल। बापू रूठ गए जब हमसे, बापू रूठ गए जब हमसे, बढ़ गई जिम्मेदारी। देख रही थी नेहरू को फिर देश की जनता सारी। देश को कितना आगे लाया देश का सच्चा लाल। देंगे गवाही आजादी के पिछले 75 साल। मैं न कहूँगा चला गया है आज वो हमसे दूर, मैं तो कहूँगा आज भी जिंदा भारत में उसका नूर। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल। देख लो गंगा की लहरों में उसकी मृदु मुस्कान। जमुना जी की हलचल में उसके खेल रहे हैं प्राण। भारत की सरहद पर बैठा भारत का रखवाल, देख रहा है बढ़ते चढ़ते भारत का सब हाल। अपने भारत का सब हाल। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल। तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल। तब जाकर पैदा होता है एक जवाहरलाल, एक जवाहरलाल, एक जवाहरलाल। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया भारतभूषण ने आपने तो पूरा नेहरू जी का जन्म कथा सुना दिया इस कविता के माध्यम से। He was indeed in the contemporary Indian politicians, contemporary Indian architects. Probably Jawaharlal Nehru will always remembered. आज जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, जितने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, the first architect was indeed पंडित जवाहरलाल नेहरू. Thank you very much. थैंक यू सर। मैं अभी आमंत्रित करता हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, हमारे नेक्स्ट कवित्री को। आइए तंकम मुखले जी, मैडम, प्लीज कम and recite your poem. Hello to all. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. Okay. A very good evening to all of you, all of us present here. And I have for some few thoughts that I have written, and I would like to present it to all. The title that I'm going to talk about is Loneliness and Solitude. Loneliness is a feeling of the mind. It is not just being alone, it is emptiness in life. Of course, maybe a person is alone and feel lonely too, but person may be in the midst of crowd and feel lonely too. Loneliness happens when the mind is devoid of positive thoughts. Loneliness happens when there is no one far and near to share. A person may stay alone and yet share with the outer world through technology and not feel alone. A person may have invested his time in people and have people to inquire after him. He's never lonely. A human who has kept his mind engrossed can never be lonely. A human who has kept sharing his life with others will never feel lonely. Loneliness is emptiness in life. Loneliness happens when you cannot adjust to the surroundings around. Loneliness also happens when you slow down and cannot catch up with the speed of the world around. Solitude is being blissfully alone. People with mind full of energy willfully seek solitude. Solitude may be the reason for artistic creativity. Solitude is a person blissfully wanting to be left alone. A person can seek solitude in the abode of nature. A person may experience solitude even in a crowd. Beautiful paintings, excellent writings, and literature has happened in solitude. Solitude is not loneliness. Solitude is connecting to everyone in silence. Even the basic necessities of life is enough to be blissfully happy in solitude. The sages of olden days went in peaceful solitude to practice meditation. A person in solitude has his cup overflowing with energy and work. A person experiencing loneliness have to be counseled out. He's in depression.
A person in solitude is willful silence. A loneliness is a compulsive silence. Being alone may experience loneliness or may be in solitude. Feeling of abundance will never make one feel lonely. Both the concepts apply to being alone, one blissful and the other sorrowful. In loneliness, one wants company, and in solitude, one would like to be left alone. The mind of the man, either solitude or lonely. One who serves society may be alone, but does not seek solitude and does not feel lonely too. How nice. Let the ones in solitude reach out to the ones who are lonely and make living a paradise for them too. Thank you. Thank you, sir. I've finished. Thank you. Now, I was just thinking, I was just wondering, because those is a very, very deep meaning and a wonderful poem, actually. Let me put only in one line that while loneliness is a curse, I mean to say the what do you call the other concept we are talking about, solitude is a bliss. Probably that's the most important thing. And therefore, the another important thing which you told about that, I like very much, that the people who are in solitude, if they can reach out to the people who are lonely, probably the world will become a paradise. That's a wonderful poem. Nice thoughts, very, very nice thoughts. And I'm sure that the many of us would like to ponder over the same. Thanks, madam. So much, sir. Sir, May I request Abhi? Yes, madam. No, I have been writing a lot of poems about, I think I have a collection of 75 poems. So that's why I asked you whether I could present one more. That next time, whenever I get a chance. Yeah, next time we look forward. Next time we look forward to one more poem of yours. Okay. Thank you very much. सर आपने मुझे अनम्यूट करके दिखाया है बोलने को, मुझे अनम्यूट करने को बोला है। नहीं आपको हेलो. Oh, that message was coming. Host wants to unmute you, so I unmuted you. Anyway, I'll mute myself. Yeah. May I request now नवीन दुग्गल जी, हमारे नेक्स्ट स्पीकर को तो प्लीज कम फॉरवर्ड. नवीन दुग्गल जी. मेरे साथियों, अब सुनाई नहीं दे रहे, म्यूट हैं. ओह, थैंक यू वेरी मच सर. आजकल जैसे उम्र बढ़ती है तो कोई भूल चूक होती है, माफ करना. ये हमारे सबसे अक्सर होती है. एंड थैंक्स फॉर योर अलर्टनेस, फोकस. आप हमारे सिर्फ गुरु ही नहीं, गुरुओं के गुरु हो. तो जब आज सबसे बधाई मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर है कि जो आपने 138 डेज में एटीट्यूड कॉर्नर रखा, आपने हर हमारे MRL के हर सोल को, हर इंसान को, एवरीबॉडी हैव मोटिवेटेड, inspired, and more than that, the objective was what is within yourself, how you believe in yourself, how would you could translate or transform yourself rather than undergoing the same rituals, no matter what country, what caste, what religion, what we speak. वासुदेव कुटुंबम का जो बेसिक इतिहास है वो आपने हमारे में इनबॉर्न कर दिया है. जैसे कॉलेज में हम बच्चों को कहते थे भाई MBA हो गया है, अभी हमारा पार्ट 2 MBA है. मैं उसका सबको आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ. तालियां से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. दूसरी बात, आज की दुनिया में सारे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के बाद ये पैंडेमिक की वजह से हम सब घबराहट और सब एक दूसरे को मिल रहे हैं वगैरह. इन अदर वर्ड्स ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कल जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब की डेथ एनिवर्सरी थी, उनका एक वही थीम था, वन वर्ल्ड वन थीम. वो वन कंट्री बोल रहे थे, हमारा भारत. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, oneness of all in one, no matter of caste, religion, let's work together towards the improvement of this country, but also about ourselves and हमारी self safety and welfare. So इसके आगे जो बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हर टॉपिक की बात सबने की, सब रिचुअल्स करते हैं और करते रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है. सिर्फ मेरा ये कहना था, एक थोड़े से मैंने पॉइंट्स निकाले थे आउट ऑफ दैट 138 डेज का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी स्ट्रांग इन आवर इमोशंस. Then how we handle with our emotions, that matters most. And when we go and work for others, we help them, we feel happy within. But what has happened at this stage, we are lack of patience. नहीं घबराहट जाते हैं, नहीं हमारे से नहीं होगा. But हम अपना जो प्रयत्न है वो जो हम पहले जोश से करते हैं, उसी जोश से अगर आगे बढ़ें, आज के दिन में भी you can do it. You can easily do it. There is nothing difficult.
और दूसरा क्या है कि फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट की भाई। और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने और सब ने इतना अच्छा आर्टिकल्स लिखे हैं, ड्रामास किए, गाने गाए, डांस किया, कविताएं एक से एक लिखी, और मेरे जैसे जो बहुत बोलता है उसको चुप करा दिया। ये सबसे मैं धन्यवाद कहता हूँ। Which has taught me that silence is within to reach to the soul, to communicate with the Lord, but there is an expression of love, gratitude and appreciation to each and every one of us, to each and every environment, चाहे पशु पंछी हो, कोई भी हो. So let's be busy with your set priorities. I don't want to say time नहीं मिलता है. Stop seeing all these forwarded messages or TV. But more than that, find time for yourself. अब वो जो टाइम है, ध्यान लगाना है, या चेंज द वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली, ये हमने सबने प्रयत्न करना है. लेकिन सबसे बड़ा हमारा एक लैक हो गया, एक हम पॉइंट भूल गए. इनकम टैक्स देने के टाइम हमको रिटर्न देनी पड़ती है. कॉलेज में जब हमने असाइनमेंट दी तो उसका हमारा इवैल्यूएशन होता था. ऐसे वर्क में भी हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता था. तो अब तक मेरा ख्याल है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए आपको समझाने में, लेकिन आप जो भी सीखे हैं, जो भी जानते हो, 1% भी अगर इम्प्लीमेंट एक दिन में करें तो 365 डेज में आपका 365 पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं. ये मेरा आज का देश है. और दूसरा है शेयर एंड केयर. अब हम हर बार कहते हैं, ओ अरे छोड़ो, उससे क्या बात करनी. तो हमारी प्री कंसीव्ड जो थिंकिंग है उसको भूल जाएं. हमारे सुख दुख जिसने क्या कहा, कब कहा, उसको भूल जाएं. अब क्या हो रहा है हमारे साथ, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प यू. इस एटीट्यूड से हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो हमारा अदर्स कोलैबोरेशन और कलेक्टिव वासुदेव कुटुंबम के साथ संगतत्वम भी रखे, उसका वननेस निकालें, तो हमें अपने आप में शांति रखेगी. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डोंट ओवरडू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट हैव योर लिमिट. डू इट इन स्मॉल, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स. You can achieve anything. To remain fit, you have to give your auto-suggestion to yourself. I am good and I'm going to make it. But not the negative that I'm going to run for 50 kilometers. Huh? Sorry. I can't make it. I know my mind and my body should be healthy. So thanks to MRL for keeping us healthy, wealthy and wise. With that, I conclude. संगचत्वम. और दूसरा जो हमारे कहते थे, कभी कभी हमारे साथ आगे बढ़ो. The world is one. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. Namaskar. Happy New Year to all, and thank you each and everyone for encouraging me. Thank you, sir. थैंक यू नवीन जी. आपने तो 30 दिसंबर को हम लोगों ने एक वर्चुअल गेट टुगेदर रखा है. आपने वो भाषण अभी दे दिया, तो फिर आपसे सुनेंगे 30 जनवरी को. बहुत अच्छा Sure. बोला आपने. 30 जनवरी, 30 दिसंबर को Thank you, sir, आपने for the बहुत अच्छा word. बोला. लेट मी ट्राई टू गिव ए बैकग्राउंड. हमने जब एटीट्यूड कॉर्नर का कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, आइडिया किया था, बिकॉज उसके ऊपर में नवीन जी ने काफी बोला, that every human being according to the common what you call understanding or common psychological thought has got 3 facets we always talk about. We talk about a person should have a knowledge. Knowledge gives a basic idea of life, basic knowledge of the things. The second essentially we talk about is the skill. The skill is the ability to do the things. And finally there is an attitude, that how do you think about the world, how do you think about others, what do you think about the context, etc. So that is extremely crucial, क्योंकि आपके पास में नॉलेज हो सकता है, आपके पास में स्किल हो सकता है, आप काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड अगर नहीं है तो ना इधर आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ के अंदर में, ना आपका क्या बोलते हैं आप हैप्पी हो पाएंगे. So that's the idea in which we started the Attitude Corner, and I thank all the members sincerely having contributed. And it is a plethora of wisdom which you are getting every day morning through the writing of each and every member. So that's a very good. And नवीन जी ने उसके बारे में बात किया, उसके लिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ. Thank you very much, नवीन. Thank you. May I request our next speaker, Ratna Mehta ji, to please come. Good evening, sir. I'm being heard, sir. Am I being heard? Yeah, you are being Yes, heard. okay. Respected Sengupta sir and my dear MRL friends. Today my subject is a very light subject. I'm going to talk about something which most of us believe in and a few of us don't believe. I am part of that don't believe. I'm talking about what you call takdeer, kismat or fate. है ना, जनरली वी गेट टू हियर दिस वर्ड, उसका तकदीर कितना अच्छा है, कहाँ से कहाँ चला गया. Yes, he has done hard work, so कहाँ से कहाँ चला गया.
We also say, Mera kismat kharab hai. I have got 50%, you have got 90%. You have worked hard, you have studied the whole night. I didn't do that. है ना? And we also say, ये मेरा fate ही ऐसा है, ऐसी. And we also say, everything is written, जो होना है, वो होता है. I agree, it may be true. But it is also, each and every individual is responsible for what happens in his or her life. This is what I want to say. And, but we think everything तकदीर है, fate है, मेरे में लिखा ही था ऐसा, ऐसा होना ही था ऐसे. So to make these things more clear, I will tell a small story. There was a man, a laborer, who was a bhakt of Lord Shiva. Itna bhakt tha, 1,000 times, 2,000 times, he used to take his name continuously throughout the day. And he will do all the pujas required. बहुत करता था वो. But he was a laborer. He used to go early morning from his village to another village to work. Evening he used to come back tired. And then he used to make his food and eat. And all the time he used to grumble, Lord, I am doing so much. I am taking your name 1,000 times, 2,000 times. Please do something for me. You are not doing anything for me. Every Monday is Lord Shiva's day, right? So Parvati and Lord Shiva, they come out of their abode from the Mount Kailash, and they look down on the earth to see what is happening, who needs me, who needs my help, like that. So Parvati by chance sees this laborer walking, dejected, tired after his day's work. He says, "Abhi ghar jaunga, khana banana hai. Bhagwan ji, क्यों नहीं करते हो हमारे लिए कुछ?" He is going like that. So Parvati says, see that bhakt of yours, कितना आपका नाम लेता है, कितना क्या क्या करता है, please do something for him, please do. So Shiva says, no, he is like that only, no use doing. She says, no, no, you can't say like that, no use doing, please do something for him. So he says, okay, you see. जिस रास्ते पे चल रहा था through the jungle, Lord Shiva, what he does, he takes a small bundle, he puts his ornaments, and he puts some gold and silver coins, ties it into a small bundle, and leaves it on the path through which this man is going. This man, as usual, was grumbling, Lord, do something, same thing, and he was taking his name, and suddenly something hit his leg. He saw, Arey, kya potli, who is this madman who has put this on the way? Kaun pagal ne aisa dal diya? And he kicks it aside and he goes ahead. He kicks it away and goes ahead. पीछे एक गरीब blind man was coming, and blind people, you know, they have a stick और टटोलते हुए आते हैं. तो इसकी लकड़ी को कुछ लग गया. तो सोच क्या है? Again he just hit his stick and saw what it is. He could hear some metal. So he sits down. He says, "My thank God, आज तो मुझे कुछ नहीं मिला. ये बर्तन ही सही, उसमें मैं कुछ I will do something with that." So he sits down, वो टटोलता है, देखता है कि कुछ metal sounds are coming. He puts it under his arm and he goes away. So Lord Shiva says, Dekha, I told you. So you see, this is Taqdeer, this is fate, this is Kismet. It is all opportunities which you get. He says, I gave him an opportunity, he kicked it aside. He went ahead, जिसको नहीं मिलना था उसने उठा लिया. Now you tell me what it is. So she agrees. So I say that it is all an opportunity lost or an opportunity given to you which you use to the best of your ability to lose or to gain. That is what I call it. And it is attitude also. This man was a grumpy man. उसका attitude ऐसा था तो सब में बुराई देखा. उसने जो मिला वो भी लात मार दिया उसको. So this, and we get to read about this attitude. Abhi sir has just said about this. Every day in the morning, the first thing I do is read about that attitude and then go ahead everywhere else. So sir, thank you so much for this attitude corner, which every day we miss. And this is what I just wanted to convey. Your attitude, and it is not your taqdeer fate. That is what I feel. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, you're right. Your attitude and not the fate. That's why English make, let me say, the two axioms. One we always say, the genius is 1% inspiration, but 99% perspiration. So unless and until there is a perspiration, you can never succeed. So only you cannot depend upon the fate. And number two, there is a very great statement by, which is a very, very fond statement of mine, which I always used to tell to my students, and that is by Jack Welch, the former chairman and managing editor of the General Electric. He was one of the most flamboyant and most successful the chief executive officer the world has ever seen. Jack Welch, there is a famous statement, and the statement itself says that he take care of a destiny, otherwise somebody else will. That if you do not take care of a destiny,
somebody else will take a destiny. That means you make your own destiny. That was the essential the statement that Jack Welch told. So that's the most important thing, that you should have an attitude of taking care of your destiny and doing the best in whatever the opportunity you get. Then only you will succeed. Otherwise, you will only cry on the fail. It doesn't make any sense actually. You are right, madam. Thank you very much. May I request our next speaker, Chandrakant Rane ji, please आइए. नमस्ते सर. नमस्कार, नमस्कार. आज बात करेंगे लॉकडाउन के फायदे और नुकसान, बेनिफिट्स एंड लॉसेस. लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी, ये अपने जीवन में अचानक आया, जैसे सब कुछ रुक गया. अब पूरा देश इस वायरस से लड़ने के लिए अपने घरों में कैद हो गया था. इस महामारी के प्रकोप से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था थी. लॉकडाउन के दौर में हमने कुछ अच्छी बातें सीखी है, कुछ ऐसे सबक हमने लिए हैं जिनको हम भुला बैठे थे. ये सबक बहुत ही पॉजिटिव है, जो हमारे और हमारे परिवार के लिए अहम स्थान रखते हैं. जानिए ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें कोविड ने सिखाई. कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद उसके असर से लाइफस्टाइल बदलने की प्रक्रिया को भविष्य में शायद ही कोई भुला पाएगा. इस महामारी ने हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के नागरिकों के जीवन में उथल पुथल मचा रखी थी. कोविड के वजह से ज्यादातर नकारात्मक परिणाम देखने सुनने को मिले. सच्चाई भी यही है कि बहुत से लोग इसी वजह से अपना रोजगार खो बैठे थे. कुछ लोग शारीरिक और मानसिक बीमारी का शिकार बने. अगर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो है मजदूर, जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे. लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ. देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया था. कोविड की खबरें लोगों की परेशान कर रही थी, जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसे समस्या से भी जूझ रहे थे. अब सुनते हैं बेनिफिट्स. लॉकडाउन से पहले के समय की बात करें तो उस वक्त हम सभी अपने रोजमर्रा कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते थे. और सभी की सिर्फ यही शिकायत रहती थी कि आज की दिनचर्या को देखते हुए समय किसके पास है. लेकिन लॉकडाउन से ये सारी शिकायतें खत्म हो गई थी. इस दौरान अपने परिवार के साथ बिताने के लिए लोगों को बेहतरीन पल मिले. कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान लोग सहज रहे थे, अपने घर बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे थे और रिश्तों में आई कड़वाहट को मिटा रहे थे. लॉकडाउन के दौरान बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला. वही जो लोग खाना बनाने में शौकीन थे, वो यूट्यूब के माध्यम से खाना बनाने सीख रहे थे. पुराने सीरियल का दौरान वापस आ रहा था, जैसे कि रामायण, जिसका मजा लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ले रहे थे और अपनी पुरानी यादों को वापस से जी रहे थे. इस दौरान प्रदूषण में बहुत कमी आई. ध्वनि और वायु प्रदूषण बहुत ही कम हुआ. उसी वजह से चिड़ियों की चहचहाहट वापस सुनाई देने लगी, जो कहीं खो गई थी. हमने फूड, वाटर, फ्रूट्स, कई जरूरी आइटम के वैल्यू मालूम पड़े. योगा, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स मालूम पड़े. इस दौरान ऑनलाइन एमआरएल ने बहुत सहारा दिया. मैंने जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया था, वो मैंने सीखा. सबकी सुनो प्रोग्राम ने तो हमें बहुत बिजी रखा. बहुत सारे बुक्स पढ़ने का मौका मिला. इस दौरान एमआरएल ने बहुत सारे हेल्पफुल बेनिफिशियल सेशन अरेंज किए. बहुत अच्छा टाइम गुजर गया. हम हमेशा सेन गुप्ता सर का आभारी रहूंगा. मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से ये न्यूज मिले कि दुनिया में एक भी कोरोना वायरस की केस नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा बैलेंस शीट बना दिया दैट कोरोना के बेनिफिट एंड लॉसेस. देखिए, ये तोलना तो बहुत मुश्किल है. ये बेनिफिट ज्यादा है या लॉस, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक मजदूर के लिए पॉसिबली ये ऑनलाइन मीटिंग्स डोंट मेक एनी सेंस. सो मजदूर के लिए शायद लॉस ही बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबली हमारे जैसे लोगों के लिए it did not make much of a difference. Rather, we got activated and we learned
a lot many new things. We get a lot of opportunity to interact online, etc. योगा मेडिटेशन में. लेकिन अगर रास्ते में मजदूर को देखेंगे, कोई गांव में आप अगर आप कोई लेडी से बात करेंगे, आई मीन टू से, और नहीं तो फिर आप जाके धारावी में अगर मजदूरों से बात करेंगे, तो आप देखेंगे लॉकडाउन में there are not thousands, but there are lakhs of the people who not only got their lost their jobs, but many people got reduction in the salary, substantial reduction in the salary. मतलब 100 रुपया से सैलरी घट के 5 रुपया हो गया. I have heard that there are reduction of the salary by 95%. So I mean to say it all depends upon हम किससे बात करते हैं. लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया बोला, इस तरह की जो एनालिसिस है काफी कम मिलती हैं. एनालिसिस जी क्या है, हम धन्यवाद है आपको देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, क्योंकि एनालिसिस बहुत कम मिलती है इस तरह की. बहुत बढ़िया. हाँ, मैं अभी आमंत्रित करता हूँ आनंद सक्सेना जी को. आइए सर. तो आनंद सक्सेना जी आपके पहले, सॉरी हम भूल गया, उज्जवल राय जी. हाँ, उज्जवल राय जी, आई एम सॉरी एक्चुअली. उज्जवल राय जी आपको बुलाते हैं प्लीज. You are there, no sir, Ujjwal Roy? Sorry, I was actually in mute condition. Now it's audible? Yeah, please go ahead. Sorry, actually. Okay. So good afternoon to everybody, and thanks MRL for giving me this opportunity, and Sengupta sir. Today actually I thought of taking a topic of karma. Actually, that is the topic. So everybody knows what is karma, but I came across certain interesting things. I thought कि let's share. तो कर्म जैसे हम बोलते हैं कि it is जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल होगा. That is what we know. And to support this, actually, I will narrate a story. Once a person came to Buddha. Actually, his father died because of some reason, and during his lifetime the person actually was not in good relationship with the son, but son tried to improve his lifestyle or improve his behavior, but somehow he could not do it. And when his father died, the person felt very bad, and he said ki this person will not be able to go to heaven because he has not done good things in his life. So he went to Buddha and asked, sir, please do something for my father. Please do some blessing so that my father goes to heaven. So Buddha smiled a little bit, and he asked him to bring some 2 earthen pots. And with 1 earthen pot, he was asked to bring some butter, and in 1 earthen pot, he was asked to bring some pebbles, full of butter and full of pebbles. And so the person was happy. Now Buddha will definitely do some kriya karma, and he will attain moksha, he said. But then the person was asked to go to a small pond, very small pond, very shallow pond, and the pots were covered by a paper or something so that it is not seen from outside, and it is just he was asked to drop the pots. So the covers went away and the pots went inside, and the covers were there with the pots, and the person was asked to break the 2 pots. So now the person again felt happy. Yes, something is going on. So when the 2 earthen pots were broken, all the things were scattered. Butter, of course, these 2 pots were in different locations. Actually went up and the pebbles went down. So now Buddha actually called some pandits, and in front of the person says, now somebody pray to God so that the stones come out on the top. And the butter I don't want. Butter should go down, but stones should come out. But no, so everybody was astonished. Even the person who was approaching Buddha, he was also astonished. He said, how can it happen, sir? Stone is stone, it can go down. Butter is lighter than water, so it will come out definitely. So Buddha said, that is what is the life. That is what is the karma. Means your father has acquired stones throughout his life. So how can a person like me,
change his karma. So that is what. So actually, that is one enlightenment through Buddha's stories. But during my lifetime also, and my whatever experiences I have gained, I have seen also many such strange incidents where suddenly some persons who were misbehaving, suddenly comes back to me after some time and he behaves well. So my point is, though it is not visible, not tangible, it is there, and we may get the result of karma. And sometimes I feel it is like a system, like in the banking system, we put money. So if you put money in your saving account, the return will be like that. If you put in your as an FD or maybe mutual fund system, the return will come better. So it is like a system. So our universe and our cosmic force, whatever is there, that so-called Almighty, it is all together in a system. And whatever data we are feeding or whatever we are giving to the system, the result will come that way. It is like a computer program. So whatever data we are feeding to the computer and the program, whatever is designed, accordingly the data will come. So if somebody is not very much confident about karma, so this type of analogies might help, and maybe we can have a more emphasis on karma. So that was my point. Thank you. Thank you, Tilra Sahab. You are right in one sense or the other that you must do good so that you may not expect good, but good will happen to you, or good might happen to you. You know, that's a law of karma, and that's what is called that you must continue doing the good things so that you spread the good vibes. And return, I don't think you will get a bad vibe. You may get a bad vibe here and there, but generally you will get a good vibe. And that's the law of life, and that's the law of karma. I agree to that position totally. Yes. Thank you very much, Ujjwal Rai sir. मैं अभी आग्रह करता हूं हमारे नेक्स्ट स्पीकर आनंद सक्सेना जी को. सक्सेना जी. Good evening, sir. Good evening, sir. I'm audible, sir. Yeah, audible. आज मैं एक पौराणिक कथा जो सुख सागर में है, भागवत में लिखी हुई है कृष्ण जी की, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ. और शायद मेरे अपने विचार से विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हमारा एक प्रयोग बना है शब्द इसी पर आधारित है. हालांकि ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है. कृष्ण जी महाराज जब द्वारका में शिफ्ट हो गए, सारे उनके काम हो गए. उन्होंने अगासुर, बकासुर, शिशुपाल, दंतव्रत, कंस सबका नाश कर दिया, महाभारत करा दी. फिर उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब गोलोक जाने की तैयारी करनी चाहिए. उनके 56 करोड़ यदुवंशी जो उनके वंश में थे वो बहुत धनवान थे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे. तो कृष्ण जी के चूंकि अपने वंशज थे, उनको मारना अपने हाथ से इट वाज नॉट गुड. तो उन्होंने सोचा कि आपस में ही इनका ऐसा कुछ तकरार हो जाए, then they should die like that. उसके लिए क्या हुआ, उनके सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन वो लोग अपने जंगल में घूमने जाते थे, हाइक करने, शिकार करने. तो वहां एक दुर्वासा ऋषि वो तपस्या कर रहे थे. तो उन लोगों ने उनका एक मजाक बनाने के लिए एक अपने लड़के को, जिसकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, उन्होंने कहा इनको पूछते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो इनसे जरा थोड़ा सा मखौल करा जाए, मजाक किया जाए. तो उस लड़के को उन्होंने उसके अंदर साड़ी वाड़ी पहना के और पेट में कुछ कपड़ा पड़ा बांध के, ही लुक लाइक ए प्रेग्नेंट वूमेन, और वो उनके पास ले गए. और दुर्वासा ऋषि को पूछा कि आप तो भूत भविष्य सब जानते हैं, बताइए इसके लड़का होगा या लड़की. तो दुर्वासा बोले भाई आप लोग श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं और आपको ये शोभा नहीं देता कि हम ऋषियों का मजाक बनाए. लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे. होनहार जैसी होती है उन्हीं. जब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा इसके ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट से
एक त्रिशूल टाइप कुछ निकलेगा और तुम सारे यदुवंशियों का नाश करेगा। ये सुन के सब बक्के बक्के रह गए, बहुत परेशान हो गए। पेट का कपड़ा जब सब हटाया गया तो उसमें एक छोटा सा मूसल निकला। वो लोग वापस आ गए द्वारका में, कृष्ण जी से बात किया। महाराज उग्रसेन राजा थे उस टाइम पे, तो वो सब चिंतित हो गए, कृष्ण जी तो जानते ही थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इसको लोहार से बिल्कुल रेत करा देते हैं और इसको समुद्र में भिजवा देते हैं तो शाप खत्म हो जाए। तो उन्होंने उसको लोहार को बुला के उसकी रेती करवा दी, बिल्कुल महीन महीन, और उसको समुद्र में भिजवा दिया। लेकिन एक बहुत छोटा सा टुकड़ा रह गया था, वो नहीं हो पाया, वो उन्होंने समुद्र में और घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ कि वो जो छोटा टुकड़ा रह गया था वो किसी मछली निकल गई, और एक केवट था, उसने मछली का जब पेट काटा तो उसमें छोटा टुकड़ा निकला। तो उसने सोचे तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको मैं तीर के आगे लगा ले। द्वारकापुरी में कोई भी श्राप जो है ना वो फलीभूत नहीं होता है। तो कृष्ण जी की मंशा से उन सबने प्रभास क्षेत्र हुआ करता था द्वारकापुरी के आगे। तो वहां सब यदुवंशी लोग स्नान करने गए। वहां जाने के बाद आपस में एक दूसरे के ऊपर वो मजाक करने लगे, छींटे मारने लगे पानी के। करते करते आपस में इतनी बहस बढ़ गई कि तीर तलवार सब निकल आए और लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और उस रेत से उसके किनारे पर एक घास जो होती है बहुत शार्प होती है, तो वो घास उगाई थी, उस घास को करके उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऑल यदुवंशी दे डाइड देयर। तो सात्विकी एक उनका साथी था कृष्ण जी का, वो उनको ढूंढता हुआ आया। कृष्ण जी आके वहां एक बाएं पैर पे दाहिना पैर उठा के जो उनका जो तलुआ होता है वो करके आराम से बैठे हुए थे। तो उसने आके कहा कि महाराज चलिए। तो उन्होंने बताया ऐसा हो गया है, तुम द्वारकापुरी सबको ले आओ, और यहाँ पर ऐसा सारे यदुवंशी की डेथ हो गई, और जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं उनको लेके अर्जुन को कहो हस्तिनापुर चले जाए। वो आया, और आने के बाद उसने ऐसा बोला तो सारे जो उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, रोते रवाते सब आए। तो जो वसुदेव देवकी थे, उग्रसेन थे, उन्होंने इतना शौक बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उन्होंने प्राण में त्याग दिए। बाकी स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ सखी हो गई, और एक हफ्ते और द्वारकापुरी भी डूब गई, और अर्जुन सबको लेके हस्तिनापुर आ गए। कृष्ण जी जब ये बैठे थे तो केवट ने जो तीर बनाया था उससे हिरण समझ के उसने दूसरे तीर मारा तो उनके तलवे में लगा। और वो जब आकर अपना शिकार उठाने के लिए आया तो देखा ये तो कृष्ण जी मार रहा है। उसको बहुत जलानी हुई, बहुत क्षमा मांगा। कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हो नहीं था। बताते हैं वो केवट जो था त्रेता युग में बाली था, जिसको रामचंद्र जी ने पेड़ों के पीछे से मारा था। और उसके बाद उसको केवट को कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आकाश से विमान आया और उसको उस रूप से सीधे ले गए। इसके बाद कृष्ण जी गोलोक जाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए, और बिजली सी चमकी और वो कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। आज भी द्वारका में कभी आप जाते हैं तो लोग बताते हैं कि दूर से कभी वो खंडर जो है ना द्वारकापुरी के नजर आते हैं और रात में चमकते हैं। और द्वारका में मैं भी जब गया था तो एक उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर बना रखा है जहाँ पर एक्चुअल कृष्ण जी को तीर लगा था। आई डोंट नो वेदर इट इज द सेम प्लेस और नॉट, लेकिन वहां उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बना रखी है और दिखा रखा है कृष्ण जी वहां से अंतर। तो ये कथा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। ये उसमें भागवत में सुख सागर में लिखी थी। बहुत बढ़िया आनंद सक्सेना जी, आपने पूरे महाभारत की बहुत ही अच्छी कथा, बहुत ही भावपूर्ण कथा, यदुवंश की जो कथा बताई बहुत ही अच्छी थी। बहुत लोगों को, मुझे पूरा जैसे पता नहीं था। So I got a lot of knowledge out of it, and I think it was a great story. Thank you. Thank you I'm very sorry, much. sir, I took little more time. Not at all. No issue at all. No issue at all. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. May I call upon the next speaker today, Madam Sandhya Ahuja, please. Sandhya Ahuja, madam. Yeah, yes, sir. Good evening, friends. Thank you, sir.
जीवन की दो अहम बातें शेयर करना चाहूंगी, एक पूर्ण विश्वास और प्रसन्नता। मुल्ला नसीरुद्दीन विवाह के बाद अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ नाव में बैठकर नदी के उस पार अपने गांव जा रहे थे। तब अचानक जोर से तूफान आया और नाव जोर जोर से डोलने लगी। नाव पर बैठे सभी यात्री और उनकी पत्नी बहुत डरने लगे, लेकिन मुल्ला जी एकदम शांत बैठे थे। तब उनकी पत्नी मुल्ला जी के पास आई और उन्हें कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो मुल्ला जी ने बिना कोई उत्तर दिए हुए अपने कमरखंड से खंजर निकाला और अपनी पत्नी की तरफ इस तरह से बढ़े जैसे कि वो उसका गला काटने जा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी के मुख पर डर की एक शिकन तक नहीं आई। तो मुल्ला जी ने पूछा कि तुम्हें खंजर से डर नहीं लगा? तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, खंजर जरूर डेंजरस है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगा क्योंकि उसको पकड़ने वाला मेरा प्यारा पति है। तब मुल्ला जी ने कहा कि बिल्कुल सही, यही बात जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, तो वो जो है वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये नदी की लहरें भले बहुत डरावनी हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला हमारा भगवान है जो हमसे प्यार करता है, और मुझे अपने भगवान पर बहुत विश्वास है, इसलिए वो शांत थे। तो जब हम किसी पर विश्वास रखते हैं, सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं और उसके प्यार पर भरोसा रखते हैं, तो हमें डर नहीं लगता। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि भगवान पर पूरा भरोसा रखो। अरे जिस भगवान ने तुम्हारा जन्म होने से पहले ही तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे खाने का अरेंजमेंट कर दिया है, वो तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता है? कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आपने चक्की को देखा होगा, वहां सब गेहूं पिस जाता है, परंतु जब हम चक्की का ऊपर का पार्ट उठाते हैं तो जो किली के आसपास थोड़ी बहुत गेहूं के दाने होते हैं वे बिल्कुल सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किली का साथ कभी नहीं छोड़ा और वो सेफ रहे। उसी तरह अगर हम अपने गुरु और भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। बस नियत और सोच साफ होनी चाहिए, मन और दिमाग शांत रहना चाहिए, और शब्दों में भी सबके लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्यार, आदर और सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात है कि जीवन में सदैव खुश और प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि परमात्मा को प्रसन्न चेहरे ही पसंद है, उसे उदास चेहरे पसंद नहीं है। भगवान ने हमें इतना दिया है, या यूं कहें औकात से भी बहुत ज्यादा दिया है, फिर भी हम प्रसन्न नहीं रहते, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। चार्ली चैपलिन कहते थे कि अभागा है वो दिन जिस दिन हम खुलकर हंसे या मुस्कुराए नहीं। एक छोटा सा बच्चा मासूम आपने देखा होगा कि हमेशा मुस्कुराता रहता है। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर उसके साथ मुस्कुराहट से बात करता है तो वह उसका रिस्पॉन्स हंसकर ही देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, ज्ञान बढ़ता जाता है, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, और अगर उस ज्ञान के साथ घमंड भी आ जाए तो वो व्यक्ति कभी भी मुस्कुराता नहीं है। चार्ली चैपलिन जो थे वो हमेशा अपने शोज में जोक सुनाया करते थे। तो एक बार उन्होंने एक जोक सुनाया तो सब लोग बहुत हंसे। फिर से उन्होंने दूसरी बार वही सेम जोक सुनाया तो कुछ लोग ही हंसे। फिर तीसरी बार उन्होंने जब वही सेम जोक सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। तब चार्ली चैपलिन ने कहा कि जब मैंने पहली बार जोक सुनाया आप सब लोग हंसे, जब दूसरी बार सुनाया बहुत कम लोग हंसे, और जब तीसरी बार सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। तो जब आप एक जोक के ऊपर बार बार हंस नहीं सकते तो एक समस्या के ऊपर जिंदगी भर रोते क्यों हो, बार बार क्यों शिकायत करते हो? इसलिए जिंदगी में सदैव हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बार एक कपल एक रेस्टोरेंट में 50th एनिवर्सरी मनाने आया। उसी दिन कुछ मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उनकी खुशहाल जिंदगी का राज पूछा। पति उनको एक कॉर्नर में ले गए और बोले, यार बात ऐसी है कि शादी के बाद हम मुंबई वापस आ गए। अगले दिन मुझे ऑफिस जाना था, तो मेरी पत्नी सुबह जल्दी उठकर मेरा नाश्ता और टिफिन की तैयारी करने में किचन चली गई।
अब मेरे किचन में चपाती बेलने वाला जो चकला था उसकी एक टांग टूटी हुई थी, तो चपाती बेलते समय उसमें से खटर खटर की आवाज आती। बहुत देर तक जब वो आवाज नहीं आई तो मैं किचन में पहुंच गया। वहां क्या देखा कि चकले की बाकी की 2 टांगे भी टूटी हुई थी। मैंने पूछा, अरे भाग्यवान, ये क्या किया, चकले की दोनों टांगे तोड़ दी? पत्नी बोली, बहुत खटर खटर कर रहा था, सो मैंने दोनों टांगे तोड़ दी, देखो अब शांत है। बस मैं समझ गया और देखो अब तक शांति है। थैंक यू एट लास्ट, थैंक यू सेनगुप्ता सर फॉर मेकिंग दिस MRL group, and thank God, a big thank that we are the members. Thank you MRL friends, take care, bye. थैंक यू वेरी मच संध्या जी। आपने दोनों जो थीम्स है बहुत ही अच्छा बोला, that have faith, have trust, and there is nothing to worry. And second, that be happy and have always smile in your face, because God has given you more than what you deserve. Even that's what you need, more than what you need. Not only that, more than you deserve, more than what you need. Then why be unhappy and why be not smiling? बहुत ही अच्छा बोला। Many thanks. और अभी आज के आखिरी पायदान पर आ रहे हैं हमारे प्यारे मित्र शशि रस्तोगी मैडम। शशि रस्तोगी जी सर। सर कैन यू हियर मी? या ओके सर, अभी मैंने अपने 8 साथियों को सुना और इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो मैंने ये लेख लिखा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसमें मैं थंगम मैडम का जो उन्होंने कहा अकेलापन और जो संध्या मैडम ने अभी कहा कि खुश रहें और मुस्कुराना, इन चीजों को लेकर के मैंने अपने इस लेख को लिखा है। और मेरे इस लेख का छोटा नाम है खुश रहने के मेरे छोटे छोटे तरीके। बच्चों के दूर हो जाने के कारण हम वरिष्ठ नागरिक अकेलापन महसूस करके दुखी हो जाते हैं। कुछ नया सीखने, अपने को एक्सप्लोर करने और खुश रहने के लिए हमारे मेंटर डॉक्टर सेनगुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में MRL फाउंडेशन ने तो हम सबको अपार खुशी दी है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम जरूरतमंद लोगों की मदद करके, कुछ लोग वृद्धाश्रम जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल जा करके उनसे बात करते हैं। मैंने भी एक कोर्स किया हुआ है जिसके लिए कैंसर के रोगियों से हम बात कर सकते हैं और उनको हम तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ आप लोग ठीक हो जाएंगे। खुशी का एहसास कराते हैं और खुश होते हैं। इन सब के अलावा मेरे अपने छोटे छोटे तरीके हैं जो मुझे खुशी देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक को सम्मान और थोड़ी सी प्रशंसा चाहिए होती है। हमारे MRL में तो ये भरपूर है, हम आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी खुशी उन लोगों को मुस्कुराहट देने में है जिनको कि हम लोग जनरली जिनसे हम बात नहीं कर पाते हैं। चाहे प्रशंसा चाहिए होती है, चाहे वह घर के कामों में मदद करने वाली महिला हो, बिल्डिंग में काम करने वाले वॉचमैन हो, सफाई कर्मचारी हो, हमारा मित्र वर्ग हो, साथ में काम करने वाले हों या हर उम्र के बच्चे हों। उचित और संयमित प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें लगता है कि इंसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उचित और संयमित मतलब जितना है उतना ही एक कंट्रोल्ड वे में अगर किसी की प्रशंसा की जाए तो इसको मैं चमचागिरी या चाटुकारिता या फ्लैटरिंग नहीं कहूंगी। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमने किसी की प्रशंसा कर दी तो वह हमारे सर के ऊपर चढ़ जाएगा या वो हमारा कहना नहीं मानेगा या वो हमको भाव नहीं देगा। ये हमें नहीं सोचना चाहिए अगर हम उसके लिए उचित और संयमित प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि उसमें आत्मविश्वास आएगा, उत्साह और भविष्य में वे और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और इससे उसे तो खुशी मिलती ही है, हमें भी खुशी मिलती है। और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? कभी उनके परिवार के बारे में पूछ के, कभी उनके बारे में पूछ के कि आपको और क्या सुविधा हम घर में दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे जो है हमें तो खुशी मिलती है, उन्हें भी उनकी मुस्कुराहट देख करके हमें भी बहुत खुशी मिलती है।
और वरिष्ठ नागरिक होने का एक फायदा ये भी है साथियों कि हम अगर किसी से भी बात करें तो हमें रिस्पांस मिलता है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कोरोना काल से पहले यहाँ खारगर में हम लोग लिटिल वर मॉल गए। वहां पर एंट्रेंस पे वो लड़की थी, उसने मेरा बैग चेक किया और उसके बाद मैं अंदर जाने लगी। जैसे ही अंदर जाने लगी उसने मुझे फिर बुलाया, मैडम। तो मुझे लगा शायद इसको कुछ शक हो गया है या ये फिर से बैग चेक करना चाहती है। तो मैंने वापस आई और अपना मैं बैग खोलने लगी। तो उसने कहा कि मैडम बैग खोलने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं आपको थैंक यू कहना भूल गई। तो मैं आश्चर्य से देखने लगी कि मुझे थैंक यू क्यों बोलेगी। तो कहती है, मैडम इतने लोग यहाँ आते हैं लेकिन कभी कोई हमसे पूछता नहीं है कि तुम कैसी हो या कितने घंटे आप काम करती या उनके बारे में या उनके परिवार के बारे में, कितनी दूर से आती हैं। जब समय हो तो शायद मैंने उससे ये सब पूछा था और उसने कहा आपने मुझे नाम लेके बुलाया, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे जानती नहीं, लेकिन आपने मुझे नाम लेके बुलाया। तो मैंने कहा मैंने आपकी नेम टैली में आपका नाम देखा था। और पर्सनल नाम लेने से उसको इतना अपनापन लगा, इतना अपनेपन की उसको मुस्कुराहट थी कि वो मुझे भी अंदर से खुशी कर गई। उसके अलावा अब उसने यही कहा कि आप जब भी आती हैं हमसे हमारा नाम लेके आप बात करती हैं। अब जैसे मॉल वगैरह में जाइए या डी मार्ट जाइए तो वहां पर वो लोग आपका पर्स वगैरह जो सील कर देते हैं। सुबह हम लोग जाते हैं, उस समय भीड़ कम होती है, तो आई ऑलवेज से गुड मॉर्निंग टू देम एंड दे फील सो हैप्पी। मैं कम नहीं हो गई, लेकिन उसको मिलता है कि किसी ने मुझे विश किया। और फिर मैं पूछती हूँ कि आप किस समय आती हैं, उसको लगता है कि एक पर्सनल टच हम उनको दे रहे हैं। ये मेरा अनुभव है। इसी तरह से हम मॉल जाते हैं तो एंट्रेंस पे जो लोग खड़े होते हैं, कई बार तो लड़कियां इतनी प्यारी बातें करती हैं कि मैडम इतना ऐसा लगता है जैसे कब से हमारी पहचान हो उनसे। हम उनको कुछ दे नहीं देते हैं, लेकिन एक उनको जो अंदर की मिलती कि किसी ने उनको पूछा, वो खुशी उनको, वो मुझे भी उस मुस्कुराहट से मुझे भी खुशी मिलती। मास्क में होते हैं, वो मुस्कुराते हैं, हम भी मास्क में होते हैं, हम भी मुस्कुराते हैं और वो खुशी बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद कई बार क्या होता मॉल में, आप देखिए लोग 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे खड़े रहते हैं। लिफ्ट मैन है वो खड़े रहते हैं और उसके लिए हम लोगों ने कई बार मैनेजमेंट से भी बात करी कि इनके लिए कभी-कभी तो बैठने की सुविधा कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, सर हम दूसरे लोगों से बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, और वो बात वहीं रह जाती है। कई बार हमने सोचा कि कुर्सियां, पर हमने कहा वो चीज ठीक नहीं होगी क्योंकि हम मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। केवल हम उनको एक बताना चाहते हैं कि इनकी भी सुविधा का ध्यान रखिए। अभी आप वॉशरूम में देखिए, लेडीज वॉशरूम में लड़कियां खड़ी रहती हैं। परसों एक लड़की ने इतनी हमें बातें बताई अपने बारे में, कहती मैडम आज मेरा दिल हल्का हो गया आपसे बात करके। लोग सोचते हैं गए या मॉल में गए सीधे अंदर चले गया। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग ये करते होंगे। तो ये चीज जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी देती है। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो कि बड़ी खुशी तो ईश्वर ने हमको दी है, MRL ने हमको बहुत बड़ी खुशी दी है। लेकिन जो छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम इन लोगों से बात करते हैं, तो वो इनकी मुस्कुराहट जो है मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है। कभी आप देखिए सड़क पर जो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, उनसे अगर आप बात करिए तो आपको पता होगा या क्या आप जानते हैं कि उनके हाथ में एक घड़ी होती है और उस घड़ी से कंट्रोल रूम से उनको पता रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ है और क्या कर रहा है। और इस तरीके से कभी वो कहते हैं कि आपको घर में कोई काम है तो जब हम फ्री हो जाएंगे हम आ सकते हैं। हमने कभी नहीं बुलाया, लेकिन एक कभी मैं नहीं गई तो पूछते हैं आज आंटी नहीं आई। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी हो गई या बहुत कुछ हो गया, लेकिन उनको ये लगता है कि एक कोई नहीं आया या सिर्फ हाउ आर यू पूछने से या किसी को थैंक यू कह देने से, या कोई अगर कोई लड़की है उसके कंधे पे अगर आप स्नेह भरा स्पर्श कर दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको ये लगता कि हाँ हमारा वर्क प्लेस में भी हम उन लोगों के तो लोग आए ही, पर अगर कोई जो लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, वो भी उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं।
उसके बाद सफाई कर्मचारियों को कभी हम लोग चाय के पैसे दे देते हैं, कभी उनके बच्चों को दिवाली वगैरह पे रुपए दे देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से आपके बच्चों के लिए है। इससे हमारा घट नहीं जाता कुछ, लेकिन उनको ये लगता है कि हाँ हमारा भी काम जो है उसका असर है, उसका भी महत्व है, हम भी समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जैसे रेक पिकर्स हैं, उनके बारे में बात करिए कि वो किस तरह से सुबह बेचारियां उठती हैं, काम करती हैं, उसके बाद वो अपना सामान कहाँ ले जाती हैं, कहाँ बेचती हैं, तो इससे हमें भी नॉलेज मिलती है और लोगों के बारे में। इसके अलावा क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम ही सबको खुशी दे रहे हैं। मेरा तो अनुभव इतना अच्छा है कि कई लोग, अनजान लोग भी जब हमसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाने जाती हूँ कि यहाँ काला घोड़ा एक जगह है साउथ मुंबई में, वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक एग्जीबिशन लगती है, फरवरी में लगती है 5-7 दिनों के लिए। तो वहां पर एक बार ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम लोग जा रहे थे। यू विल नॉट बिलीव, कॉलेज की 2 लड़कियां उधर से जा रही थी और उन्होंने हमें देखा और देख करके देखते कहती हैं हाउ स्वीट, आप लोग ऐसे ही रहिए। तो उसके बाद वो चली गई। तो हमने सोचा कि ना हमारी जान, ना पहचान, ना कुछ, और इसके बावजूद भी उन्होंने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया। और उसके बाद हमारी जितनी थकान थी, जितनी हमारी मतलब मेरा पैर का जो दर्द था, थोड़ी देर के लिए तो वो दूर हो गया। तो मुझे लगा कि अनजान व्यक्ति भी अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है, या आप उसकी तरह लग रही हैं, या आप इतना मेहनत कर रही हैं, तो उससे जो है हमारी थकान दूर हो जाती है और हमें एक अच्छा लगता है कि हाँ हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं। तो ये अनजान बच्चे जो कॉलेज की लड़कियां थी, उन्होंने भी हमें 2 मिनट के लिए तो खुशी दे ही दी थी। उसके बाद ऐसे ही एक बार हम लोग यहाँ सी फूड मॉल में लंच कर रहे थे, तो 2 लेडीज थी, सीनियर लेडीज थी, वो भी बहुत दिनों बाद मिली थी, वो हम लोगों को बहुत देर से देख रही थी। तो जब हम लोग लिफ्ट की तरफ आने लगे नीचे जाने के लिए, तो वो खड़ी हो गई और कहती है कि हम आप लोगों को बहुत देर से देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो हमने कहा कि हम लोगों का घर जाना था, लेकिन हम लोग यहीं बैठ गए। उसके बाद उन लोगों ने हमसे काफी बातें करी, हमें भी उनसे बात करके अच्छा लगा। उसके बाद हम कभी नहीं मिले, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हमने अपने आप को किया, लेकिन 2 मिनट की वो जो बातें थी, उससे हमें लगा कि अपने लोगों से तो हम बात करते ही हैं, अगर हम इन लोगों से बात करें या किसी सब्जी वाले से, अगर आप सब्जी ले रही हैं, उससे बात करें कि भैया तुम्हारा कितना बिक्री होती है, क्या है, और हम लोग अब मोल भाव उनसे करते ही नहीं है, जो दाम बता दिया वो ले लिया कि चलो 4 पैसा अगर हमसे कमा रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समाज के अनजान लोग भी जो हैं, हम लोग एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी खुशियां दे सकते हैं। और यहाँ पर ये है फिल्म तमन्ना में मशहूर शायर निदा फाजली की ये पंक्तियां मुझे बहुत ही अर्थपूर्ण लगी। उन्होंने एक उनका भी ये गाना भी है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये भी एक ईश्वर की इबादत है, हर इंसान में एक ईश्वर है। अगर हमने उस ईश्वर को की थोड़ी प्रशंसा कर दी, उस इंसान को खुश कर दिया, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे और मुझे लगता है कि वो भी खुश होते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि चलिए लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाई जाए, जिनसे कि हम जनरली बात नहीं करते हैं। ये मेरा लेख सिर्फ उन्हीं के लिए है। धन्यवाद आपको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। धन्यवाद। धन्यवाद शशि रस्तोगी जी मैडम। I think that was a wonderful end to a great program. You know, that's the crux of the entire thing, that they make others happy यस सर। and make those happy whom you do not know. जो यस आपको सर। जानते हैं, जो आपसे काम करते हैं, उनको तो हैप्पी रख सकते ही हैं। You know, I went to London long back. That was the first visit of mine, somewhere I think 89 or 90. यस I सर। still remember that everybody used to say thank you. यस You सर। buy anything, they will say Yes, thank you. sir. You give anything, they will say thank you. You meet anybody, they will say thank you. So I was wondering, ये इतना thank you बोलने का क्या है क्या actually?
And that stirred my mind. I'm talking about 1918 and 1990. That stirred my mind, and I started looking into the whole concept of appreciation, saying thanks, the gratitude, feeling good about others, making the other people happy. And I learned that the word thank you, the conversations, they make a lot of difference to the lives of the others. Thank you very much, Shashi Rastogi madam, for Thank you, your sir. wonderful talk. Sir, generally we also say to auto wala also, sometimes we go, or to a shopkeeper, it becomes our habit actually. And Yes, I it think should it's a become an very good habit. habit. It should become an habit actually. Yes, To say sir. thank you. That's the minimum thing what we can do. If we say thank you to the people whose services we are taking or whom we are meeting every day, whatever it is I'm talking about. Yes, sir. Thank you. We don't lose anything. Rather, we gain everything actually. It brings happiness to them, and that's probably been more meaning to their life as well as to our life. That was a grand finale to a good Sabki Suno program. We thank everyone for the wonderful So, talk. thank you, It was Shashi a madam. great- Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. very much. Thanks, sir. Thank you. She was looking for a rent out. Thank you, everybody. Yeah. Thank you. very much, Thank everyone. you. Yeah. Good. I think just stay with the family or बहुत बढ़िया you, sir. सबको। सबने बहुत अच्छा बोला, नई नई चीजें सीखने को मिली आज। अच्छा तो हम चलते हैं, अगले साल मिलेंगे। बाय बाय। नहीं सर, इसी साल मिलेंगे। आप मिलेंगे लेकिन अभी हम अगले प्रोग्राम साल होने हैं। सबकी सुनना इसी है साल अभी मिल रहे हैं ना, अभी प्रोग्राम्स है। कहीं बाहर हाँ। जाने का इरादा है क्या? प्रोग्राम्स है, अभी भी ये लास्ट मीट नहीं है इस साल में। I know. और भी है। और भी प्रोग्राम्स है ना? है ना? हाँ। अभी ये समझ में ना समझ है, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो सर अनाड़ी अनाड़ी है। मत करिए हम लोगों को। नहीं, जो समझ गए वो तो 30 मार्क कहाँ है जी। जय हो सबको, नमस्कार। थैंक यू वीना क्या जी, आपका कहीं और सानंदा जाना जी, इरादा है क्या? हेमलता जी, very निर्मला nice जी, program. संध्या जी, एवरीबॉडी। और मोर देन दैट दोनों हमारे पेट्रो साहब, हमारे दूसरे सदस्य जो है शशि जी तो है ही है, बाकी चंद्रकांत जी, नहीं सबने सर, सबने खूब बनाया। बहुत अच्छा रमणी बोला। मैडम, बहुत अच्छा बोला। ज्योति रामदास जी, गोपाल जी, मेरे को कभी रत्ना। नाम याद नहीं रहता तो मुझे माफ करना, मगर मैं थोड़ा सबका। हंसाना चाह रहा था Everybody. कि वो बोले वो भी आया, ये भी आया, क्या समझे। बोले अरे क्या समझना है ये अभी, ये क्या क्यों नहीं लोग समझते, जो हम समझते हैं वो नहीं समझते। तो ये बोलते हैं भाई ये कसूर आंखों का था, दिल का जो नहीं था। क्यों अभी भी हम दिल जवान है हमारा, इसलिए हम कहते हैं समझ लो और खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। यस सर। Very nice. Bye, हेलो निर्मला everyone. मैडम। Bye. See you in next program. Not next Yeah. year, next program. First musical program. प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। एक खत्म नहीं होने पाता कि हम दूसरे का इंतजार करते हैं। जी। Bye. Thank you so much. Namaste. नमस्कार। मैं चाहूंगा कि नित्या जी अगला ओपनिंग बैट्समैन 2022 का हमारे को भाषण सुनना मांगता। जय हिंद। आपका भाषण तो हम सुनते हैं। नहीं, मेरे को तो मेरी आवाज तो कोई, मैं इसलिए मुझे सब पूछते हैं रीजन ऑफ योर सक्सेस है, वो जो चुप रहना है ना, वो एक चुप 100 सुख। मैं बहुत सुखी हूँ। फोटो निकाली, आंख मारी, चलेगा। खुश रहना जरूरी है। फेस रीडिंग से मैं पता लगा